आपल्या ईगल फ्लाइट या मॅथ्स अँड सायन्स अकॅडमी युट्यूब चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। त्याचबरोबर आजच्या या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 6वीत शिकत असणाऱ्या सर्व विद्यार्थी मित्रांचंही स्वागत आहे। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 6वी सामान्य विज्ञान या पाठ्यपुस्तकातील सजीव सृष्टी हा घटक पाहणार आहोत आणि यामध्ये पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सभोवताली अनेक प्रकारचे प्राणी आणि वनस्पती आपण पाहत असतो। त्यामध्ये काही बाबतीत साम्य आढळतं तर काही बाबतींमध्ये भेद आढळून येतो, परंतु तरीही ते सर्व सजीव आहेत हे आपण काही ठराविक वैशिष्ट्यांच्या आधारे ओळखतो। निर्जीवांमध्ये मात्र ही वैशिष्ट्ये दिसून येत नाहीत। ही वैशिष्ट्ये म्हणजे सजीवांची लक्षणे आहेत आणि याच लक्षणांचा अभ्यास आपण आज या व्हिडिओमध्ये सविस्तर पाहणार आहोत। यानंतर आपण सजीवांचं दुसरं लक्षण अभ्यासणार आहोत, ते म्हणजे श्वसन। पहा, सजीवांना जगण्यासाठी ऑक्सिजनची आवश्यकता असते। ऑक्सिजन शरीरात घेणे व त्याच्या वापरातून शरीरात तयार होणारा कार्बन डायऑक्साईड वायू शरीराबाहेर सोडणे यालाच श्वसन असे म्हणतात। मासा, साप, उंदीर, अळी, झुरळ अशा प्राण्यांच्या मध्ये श्वसनासाठी ठराविक इंद्रिय असतात, तर वनस्पती त्यांच्या खोड व पानांमधील सूक्ष्म छिद्रांवाटे श्वसन करत असतात। म्हणजे श्वसन हे सजीवांचं एक लक्षण आहे, हे आपण या व्हिडिओमधून पाहूया। Fire all the time because their cells need energy to stay alive, but plants can only photosynthesize when they are in the light. Each plant part breathes through its external layer of cells. Roots breathe through root hairs. Stems breathe through epidermis. Leaves have numerous small pores called stomata for breathing. Let us learn about them in detail one by one. The exchange of oxygen and carbon dioxide in the leaf occurs through pores called stomata. Normally, stomata open when the light strikes the leaf in the morning and close during the night. The immediate cause is a change in the pressure gradient or the turgor of the guard cells. The inner wall of each guard cell is thick and elastic. When turgor develops, the thin outer walls of the stoma bulge out, forcing the stoma to open. When the guard cells lose turgor, the elastic inner walls regain their original shape and the stoma closes. Woody stems are covered with suberin, a waxy waterproof substance. So cork is as impervious to oxygen and carbon dioxide as it is to water. However, the cork of woody stems is perforated by non-suberized pores called lenticles. They enable oxygen to reach the intercellular spaces of the interior tissues and carbon dioxide to be released to the atmosphere. I
have read that plants also manufacture their food with the help of sunlight, water, and carbon dioxide from the air. How is photosynthesis different from respiration? As we can see from the word equations, respiration and photosynthesis are opposites. Respiration uses oxygen and produces carbon dioxide. Photosynthesis uses carbon dioxide and produces oxygen. It is important to note here that the plants respire all the time, whether it is dark or light. They photosynthesize only when they are in the light. Let us have a look at how plants behave in the day and in the night. To understand the process of breathing. In humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue, known as the diaphragm, are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung is divided into 3 lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes, the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi, which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood, containing RBCs, is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs, and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea, and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of the muscular diaphragm, the lungs expand, and the air rushes in, resulting in the inflation of the alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute. कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं हम? कुछ ही मिनट ना। सांस के बिना जीवन असंभव। पृथ्वी पर हमारे चारों तरफ है वातावरण। जमीन पर रहने वाले हम सब प्राणियों का जीवन वातावरण की ऑक्सीजन पर ही टिका है। नाक से हवा अंदर, फेफड़ों मतलब लंग्स में जाती है। हवा में है ऑक्सीजन भी, जो हमारे रक्त में घुलता है और फिर रक्त ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचा देता है। पर यह बात तो जमीन
और हवा में रहने वाले प्राणियों पर लागू। उनका क्या जो पानी में रहते हैं। वो असंख्य जीव सांस कैसे लेते हैं? आज बात इसी बात की। कैसे लेते हैं पानी में सांस? हाउ डज वन ब्रीथ इन वाटर? पानी के अंदर भी विविध जीवन का एक जंगल ही है। अब ये तो हम जानते हैं कि पानी में ऑक्सीजन घुली होती है और ये असंख्य जीव इसी ऑक्सीजन के सहारे जिंदा हैं। लेकिन कैसे? बात शुरू करते हैं मछली, जल की रानी से। वो कैसे लेती है सांस? मछलियों के शरीर में होते हैं बड़े ही विशिष्ट अंग, गलफड़े या अंग्रेजी में गिल्स। गिल्स में होती हैं बहुत सारी रक्त वाहिनियां। मछली मुंह से पानी अंदर लेती है। ये पानी उसके गिल्स के ऊपर से गुजरता है और शरीर से बाहर निकलता है। गिल्स की महीन दीवारें पानी में घुली ऑक्सीजन को खींच लेती हैं और रक्त में पहुंचा देती हैं। रक्त के साथ ऑक्सीजन मछली की हर कोशिका तक पहुंचता है और उसे जिंदा रखता है। समुद्री जीव जैसे ऑक्टोपस, स्क्विड और सी हॉर्स भी मछलियों की ही तरह मतलब गिल्स से ही सांस लेते हैं। लेकिन उनका क्या जो रहते हैं कभी पानी के अंदर तो कभी जमीन पर। मेंढक के बच्चे टैडपोल देखने में मछली जैसे और वो सांस भी लेते हैं मछलियों की तरह गिल्स से। लेकिन जब वो बड़े होकर रूप बदलते हैं और मेंढक बनते हैं तो गिल्स हो जाते हैं गायब। अब वो फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। वैसे मेंढक अपनी नम खाल की मदद से भी सांस लेता है। उनकी खाल में बहुत सारी महीन रक्त वाहिनियां आसपास की ऑक्सीजन को अंदर लेने में सक्षम हैं। है ना अपने घर में जिंदा रहने का अनोखा प्रबंध। स्तनधारियों मतलब मैमल्स की कहानी कुछ अलग। वो अंडे नहीं देते, स्तनधारी अपने बच्चों को ही जन्म देते हैं। हमारी तरह सभी स्तनधारियों के फेफड़े होते हैं और वे उन्हें सांस लेने में मदद करते हैं। लेकिन उन स्तनधारियों का क्या जिनका घर पानी है? व्हेल या डॉल्फिन जैसे स्तनधारी पानी में रहते हैं लेकिन सांस लेते हैं हवा से ही। सांस लेने के लिए वो पानी की सतह पर आते हैं। व्हेल के सिर के ऊपर तो स्थित ब्लोहोल मानो हमारी नाक। ब्लोहोल से वो अंदर हवा लेते हैं और ये हवा उनके शरीर के अंदर स्थित फेफड़ों तक जाती है। सांस बाहर छोड़ने के लिए भी वो ऊपर आते हैं और हमें दिखता है फव्वारा। व्हेल्स और डॉल्फिन दोनों ही बहुत देर तक पानी में अंदर रह सकते हैं। 90 मिनट तक सांस रोक सकते हैं वो। पानी के अंदर जीवित रहने के लिए ढले हैं सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स भी। सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए, हर प्राणी की तरह जिंदा रहने के लिए उन्हें भी चाहिए ऑक्सीजन। मगरमच्छ और घड़ियाल अपने सर के ऊपर स्थित नथुनों से सांस लेते हैं। उन्हें भी पानी के ऊपर आना ही पड़ता है। पानी में घर है इस अनोखी जेलीफिश का भी। उसके शरीर में सांस लेने के लिए कोई विशेष अंग नहीं, लेकिन उसका पूरा शरीर ही इतना महीन कि वो सीधे पानी से ऑक्सीजन खींचकर अपनी कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। सांस के बिना जीवित नहीं रह सकते पौधे भी। पानी की सतह पर तैरने वाले पौधे जैसे जलकुमुद मतलब वाटर लिली, इनके बड़े बड़े पत्तों के ऊपरी तरफ हैं रंध्र मतलब स्टोमाटा। इन्हीं में से वातावरण की ऑक्सीजन पौधे को मिल जाती है। लेकिन बहुत से पौधे तो पानी के अंदर ही उगते बढ़ते हैं, वही उनका जीवन है। उनके पत्ते पतले और दूर दूर तक फैले हुए, ताकि वो पानी में घुली ऑक्सीजन अंदर। यानंतर आपण अभ्यासणार आहोत पुढचं लक्षण उत्सर्जन।
प्राण्यांच्या शरीरात होणाऱ्या अनेक क्रियांमधून निरुपयोगी टाकाऊ पदार्थ तयार होत असतात, त्यांनाच उत्सर्ग असं म्हटलं जातं. हे उत्सर्ग शरीराबाहेर टाकण्याच्या क्रियेलाच उत्सर्जन असं म्हणतात. प्राण्यांच्या मध्ये उत्सर्जनाचे विविध अवयव असतात, परंतु या वनस्पती देखील उत्सर्जन करतात. उदाहरणार्थ, काही वनस्पतींची विशिष्ट ऋतूमध्ये पानगळ होत असते. वनस्पतींच्या पानांमध्ये साठलेले उत्सर्ग त्या पानाबरोबर गळून पडतात. In plants, excretion in plants is much simpler than that of animals. Plants do not have any special organs for removal of waste. Gaseous excretory materials are eliminated by diffusion through the stomata. Many plants eliminate waste by its accumulation of waste in the vacuoles of the aging leaf cells. These leaves will eventually die and fall off, removing waste in the process. In some plants, waste products are stored as raisins and gum in the old xylem. Have you ever noticed a sticky, milky, or oily substance oozing out from the bark of trees? These are excretory products stored in the old xylem. Plants also excrete some waste substances into the soil around them. In some plants, waste is in the form of calcium oxalate crystals called as raphides. These are needle-shaped and therefore hurt and cause itching. For example, colocasia leaves and the outer skin of the onion. Some plant wastes are very useful to human beings, such as rubber latex, gum, raisins, and essential oils like eucalyptus or sandalwood oil. Rubber latex is used to produce gloves. The hard, transparent raisins are principally used for varnishes and adhesives, while the softer raisins and gum raisins containing essential oils are more largely used for therapeutic purposes and incense. उत्सर्ग हे सजीवांचे एक प्रमुख लक्षण आहे आणि यामध्ये वनस्पतींमध्ये होणारं उत्सर्जन हे आपल्याला जर पाहायचं असेल तर आपल्या सभोवती असणारे बाभूळ किंवा शेवगा ह्या ज्या वनस्पती आहेत या वनस्पतींच्या वरती दिसणारा जो चिकट पदार्थ असतो किंवा त्याला आपण डिंक म्हणतो, हा डिंक म्हणजेच वनस्पतींचा उत्सर्ग असतो. हे आपण काही व्हिडिओ मधून पाहूया. पहा, आता यानंतर आपण सजीवांचं पुढचं लक्षण अभ्यासत आहोत, ते म्हणजे चेतना क्षमता किंवा हालचाल. एखाद्या वेळी आपल्या डोळ्यावर जर अचानक प्रकाश पडला तर आपली काय प्रतिक्रिया असते, त्याचबरोबर आपल्या हाताला अचानक कोणी चिमटा काढला किंवा टाचणी टोचली तर काय प्रतिक्रिया घडते, किंवा लाजाळू नावाची जी वनस्पती असते त्या वनस्पतींच्या पानांना स्पर्श केला तर तिच्यामध्ये काय बदल घडतो किंवा तिची काय प्रतिक्रिया असते. दिवस मावळल्यानंतर अंगणातील अथवा रस्त्यावरील विजेचे दिवे लागले तर त्याभोवती कीटक जमा झालेले आपण पाहत असतो. म्हणजेच आता आपण चेतना क्षमता व हालचाल हे सजीवांचं लक्षण काही व्हिडिओच्या द्वारे अभ्यासणार आहोत. चेतनेला प्रतिसाद देताना सजीवांमध्ये विविध क्रिया होतात. तुम्ही गायी म्हशींच्या गोठ्यात अचानक प्रवेश केल्यानंतर त्यांचे उभे राहणे, इकडून तिकडे फिरणे, एखाद्या गायीचे हंबरणे या सर्व त्यांच्या हालचाली असतात. अंगणात लावलेली वेल सुद्धा आधाराच्या दिशेने झुकत असते. कुंडीमध्ये लावलेली वनस्पती खिडकीत ठेवली तर सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने झुकलेली दिसते, म्हणजे तिची हालचाल होते. सजीवांमध्ये हालचाल ही स्वयंप्रेरणेने होत असते. सभोवताली घडलेली घटना म्हणजे चेतना व त्यामुळे सजीवांनी केलेली हालचाल म्हणजे प्रतिसाद होय. चेतनेला प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेला चेतना क्षमता असे म्हणतात. आणि ही चेतना क्षमता आपण एका व्हिडिओ मधून पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये लाजाळू ही वनस्पती
कसा प्रतिसाद देते तिला स्पर्श केल्यानंतर हे अभ्यासणार आहोत.